हेलो गाइस, वेलकम अगेन टुडेज वीडियो। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि डे 3 एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। व्हाट आर द एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक्स एंड व्हाई वी नीड these techniques? So this is the day 3 video of series of prompt engineering. In the day 1 we covered prompt and its core element in the day 1, and in the day 2 we covered what are the formatting best practice of the prompt engineering. In the day 3, we will cover advanced prompt technique. So let's start. So beyond basic structure and formatting, several advanced technique can significantly enhance the performance of an LLM. भाई जो भी देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट टेक्निक और प्रॉम्प्टिंग का ही खेल है। यदि आपको एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करना है, लाइक व्हाट एवर यू वांट टू, लाइक योर डिजायर आउटपुट will generate LLM, then you have to put a good prompt, a like clear and concise prompt, so LLM will generate the response whatever you want. So here we have lot of advanced prompt technique like chain of thought prompting, then zero shot and few shot prompt techniques, then role prompting, self consistency prompting, and general knowledge prompting, prompt chaining. Then at the last we will move the conclusion. So let's start with the what is chain of thought prompting. So chain of thought prompting encourages the model to explain its reasoning process step by step before providing the final answer. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि मॉडल को एक्सप्लेन करता है इट्स रीजनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करना है बिफोर प्रोवाइडिंग फाइनल फाइनल आंसर देने के पहले वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग प्रोसेस करता है. So this is like main funda of the chain of thought prompting. This techniques is particularly effective for complex reasoning task. जो भी like complex reasoning task यदि अपने पास हैं तो ये टेक्निक बहुत कारगर सिद्ध होगी, or it will give the like desired output. If you have a complex problem, then this will be give the complex reasoning task. It as it allow the model to break down the problem into smaller manageable manageable steps and leads to more accurate and transparent result. So you can see like as it allow the model to break down the problem into smaller. यही भाई मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है ना, ये टेक्निक क्या कर रही है, प्रॉब्लम है जो उसको ब्रेक डाउन कर रही है इसमें स्मॉलर चंक में, स्मॉलर प्रॉब्लम इसको ब्रेक डाउन करके उसको फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही है. तो ये जो प्रॉम्प्टिंग है ना, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी. देन हियर द एग्जांपल क्वेश्चन, इफ अ कार travels 60 miles per hour for 3 hours and then it 40 40 miles per hour for 2 hours, what is the total distance traveled? Let's break this down step by step. So this is the example, like why adding, let's break this down step by step. Let's break down this step by step. You increase the model to show its work, which often leads to a correct answer. तो ऐसे में आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टेप बाय स्टेप. देन व्हाट इज द सेकेंड प्रॉम्प्ट टेक्निक, एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक, जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट टेक्निक, जो कि अपन ने पहले भी कवर की है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिफाइनमेंट ऑफ जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. Zero shot prompting involves providing no example. In the zero shot prompting, we did not give the any kind of example, ना ही इनपुट देते हैं ना आउटपुट, लाइक उसमें एग्जाम्पल नहीं बताते कि हमें किस प्रकार का आउटपुट चाहिए या किस प्रकार से प्रोसेस करो, क्या इनपुट है. जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस में पहले से बता दिया कि पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए अलग एग्जाम्पल दिया था, नेगेटिव के अलग, और न्यूट्रल के लिए अलग दिया था. तो इन दी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में अपन कोई भी एग्जाम्पल नहीं देते, लेकिन फ्यू शॉर्ट में देते हैं. रिलाइंग सोनली ऑन द मॉडल्स प्री ट्रेन नॉलेज. जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि अपन पूरा डिपेंड होते हैं कि मॉडल जैसा अभी ट्रेंड हुआ है उसकी नॉलेज पे, ठीक है. इन द फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग
एज डिस्कस्ड प्रोवाइड अ फ्यू एग्जाम्पल टू गाइड द मॉडल। जैसे कि मैंने बताया कि सेंटीमेंट एनालिसिस में जब वी नीड टू क्लासीफाई, सो वी already give the example of like positive sentiment, negative sentence sentiment and neutral sentiment. So we give the already example how you can decide the sentiment in future for upcoming queries. So this is the example of few short prompting. The choice between these depend on the complexity of the task and the model capabilities. ये डिपेंड करती है कि आपका टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है और आपका मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल में लाइक जो अपडेटेड मॉडल रहती है ना, उनमें ज़्यादा लाइक कैपेबिलिटीज़ रहती हैं एज कम्पेयर टू लाइक अर्लियर मॉडल्स. So now this is the zero shot and few shot prompt techniques. Then what is the role prompting? Role prompting, assigning a specific persona or role to the LLM can significantly influence its tone, style and the type of information it provides. लाइक इसमें अपन क्या करते हैं कि एक रोल असाइन करते हैं किसको, LLM को, कि उसको टोन बता दे, स्टाइल, टाइप, इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड. दिस इज यूजफुल फॉर कस्टमाइजिंग द आउटपुट टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट. ये लाइक क्या कर देगा, आपके आउटपुट को कस्टमाइज कर देगा अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट. लाइक एक्ट एज अ सीजनल फाइनेंशियल एडवाइजर. यदि आपको किसी लाइक फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप उसको बता सकते हो एक्ट एज अ सीजन फाइनेंशियल एडवाइस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू अ हाई स्कूल स्टूडेंट. आपने पहले से उसको रोल बता दिया कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताना है, कि लाइक उसको एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आपने पहले से बता दिया कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और आपको एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताना है. दिस इज़ अ रोल प्रॉम्प्टिंग. सो वी कैन डिफाइन द रोल, then LLM will understand easily what is my role and then what I have to do. So it will do. Then fourth one is self consistency. What is the self consistency? Self consistency is the technique where the model generate multiple diverse reasoning path and then select the model consistent answer. Self consistency technique where the model generate multiple diverse reasoning, बहुत ज़्यादा लाइक मल्टीपल बहुत सारे रीजनिंग पाथ जनरेट करता है और सेलेक्ट द मोस्ट कंसिस्टेंट आंसर. और जो भी लाइक रिलायबल आंसर होता है, जो मोस्ट कंसिस्टेंट होता है, उसको वो आंसर के रूप में सिलेक्ट करता है. दिस कैन इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द आउटपुट स्पेशली फॉर टास्क रिक्वायरिंग लॉजिकल डिटेक्शंस. ये लाइक एक आपको रिलायबल आंसर देगा बिकॉज which answer have a more consistency, then LLM will give the answer as a response. So it will be give the like lot of information, whatever you are asking, whatever you want. It will the self consistency. In this five number, like general knowledge prompting. What is general knowledge prompting? In the general knowledge prompting, this technique involves prompting the model to first generate relevant knowledge और फैक्ट अबाउट अ टॉपिक. पहले क्या करेगा, जनरेट करेगा रिलेवेंट नॉलेज के बारे में नॉलेज, देन फैक्ट अबाउट अ टॉपिक, टॉपिक के बारे में फैक्ट बताएगा, एंड देन यूज दैट जनरेटेड नॉलेज टू आंसर अ क्वेश्चन. उसी जनरेटेड को नॉलेज को फिर क्या करेगा, यूज़ करेगा फोकाई के लिए, क्वेश्चन के आंसर के लिए, और कंप्लीट अ टास्क और टास्क को कंप्लीट करेगा. दिस कैन बी particularly useful when the model needs to across or synthesize information that might not be immediately evident for an initial prompt. ये बहुत यूजफुल हो सकती है. पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द मॉडल नीड्स टू एक्सेस, या मॉडल के लिए एक्सेस चाहिए क्या, या सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना है, दैट माइट नॉट बी इमीडिएटली एविडेंट. क्योंकि वो लाइक इविडेंट ही हो सकती है, लाइक इमीडिएटली एविडेंट नहीं है, इनिशियल प्रॉम्प्ट हो सकती है. देन व्हाट इज द प्रॉम्प्ट चेनिंग? प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है? प्रॉम्प्ट चेनिंग टेक्निक. प्रॉम्प्ट चेनिंग इन्वॉल्व ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर. चेन का मतलब समझते हो कि चेन को कड़ी से कड़ी जोड़ना है. लाइक एक चेन होती है, एक कड़ी से कड़ी इसको
जोड़ते हैं देन बनती है। तो इसी प्रकार से प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे। सो इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क को सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क में बी ब्रेक डाउन सिक्वेंशियली प्रॉम्प्ट। द आउटपुट ऑफ वन प्रॉम्प्ट सर्व एज अ इनपुट फॉर द नेक्स्ट allowing for the more structure and control generate process। लाइक जो भी आउटपुट रहेगा फर्स्ट प्रॉम्प्ट का वो सेकंड प्रॉम्प्ट के लिए आंसर रहेगा, मतलब इनपुट रहेगा। देन आउटपुट ऑफ सेकंड प्रॉम्प्ट इट विल बी द इनपुट ऑफ थर्ड प्रॉम्प्ट। देन फोर्थ प्रॉम्प्ट लाइक थर्ड प्रॉम्प्ट response will be the input of the fourth prompt। like that it will produce it will it will build the chain, and this is called chain of prompt chaining and input next allowing the four structure and control generate process। this is effective for multi stage task। like आपके पास बहुत ज़्यादा सारे टास्क हैं, एक ही एजेंट के पास मल्टी टास्क हैं, यदि आप लाइक बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं देन व्हेन प्राइसिसली कंट्रोल ओवर इंटरमीडिएट स्टेप इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कि लाइक बीच में इंटरमीडिएट स्टेप जरूरी है, मल्टी स्टेज टास्क चाहिए है, परफॉर्म करवाना है LLM से, देन it will help you। so this is called what prompt chaining। this technique is prompt chaining। now move to the what is the conclusion in the prompt series। so mastering prompt structure and formatting is fundamental to effective interacting with large language models। लाइक भाई ये तो पता ही कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क करते हैं क्या पे, जो कि आपने प्रॉम्प्ट दिया है प्रॉम्प्ट के बेस पे वो रिस्पॉन्स देंगे। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उनका, जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे उसके बेस पे उसका रिस्पॉन्स आएगा, और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और आप जानते ही हैं कि प्रॉम्प्ट से क्या क्या कर सकते हैं आप अपना लाइक टाइम बचा सकते हैं। कैसे कि आपने एक बार अच्छा प्रॉम्प्ट दिया तो वो रिस्पॉन्स भी आपको जनरेट करके देगा, और जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आपको लाइक जो वॉट एवर यू वांट, जैसा कि आप चाहते थे उसी प्रकार का रिस्पॉन्स रहेगा। तो आपका टाइम बचेगा और टोकन बचेंगे सो आपका जो API का कॉस्ट है वो पैसे भी कम लगेंगे, तो सब बचता है, एफर्ट भी कम लगता है। सो इट्स अ लाइक इटरेटिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि आपने एक बार प्रॉम्प्ट लिखा, सही नहीं लिखा, सही ना आंसर नहीं आया, तो आप उसको इम्प्रूव करोगे, देन अगेन फिर से प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर से प्रॉम्प्ट लिखोगे, देन इट इज़ द इटरेटिव प्रोसेस। ओके, so we will learn by the writing the prompt again and again, then we will experience how to write good prompt, क्योंकि पहले किसी को नहीं आता है, बाद में लाइक धीरे धीरे सब सीखते हैं। सो दिस इज द कंक्लूजन लाइक वाई अंडरस्टैंडिंग द कोर एलिमेंट ऑफ द प्रॉम्प्ट लाइक इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट क्या है, इनपुट डेटा क्या होना चाहिए, देन आउटपुट इंडिकेटर कैसे देना चाहिए, देन अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए। यूजर कैन सिग्निफिकेंटली इन्हांस द क्वालिटी एंड द रिलेवेंस ऑफ AI जनरेट कंटेंट। टेक्निक सच एज यूजिंग क्लियर डेलीमीटर यूज़ करना चाहिए, प्रोवाइड एग्जाम्पल देना चाहिए, पहले से गाइड कर देना चाहिए कि लाइक आई वांट दी आंसर इन दिस फॉर्मेट, सो वी कैन प्रोवाइड दी सम एग्जाम्पल टू दी LLM, देन LLM will generate the whatever you give the example, then LLM will generate the response according to your examples। and then defining output, in which format you want your answer will be generated by the LLM, so that you can define the which whatever output you need and you want from output format, so you can already define, like you can define the which format of the output you want। then employing advanced strategy like chain of thought prompting, आप chain of thought prompting लगा सकते हैं। empower users to unlock the full potential and these powerful AI tools। और AI टूल्स का आपको यदि सही से यूज़ करना है, फुल पोटेंशियल आपको यूज़ करना है, देन यू हैव टू गिव द राइट प्रॉम्प्ट, क्लियर प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन इनपुट डेटा, आउटपुट इंडिकेटर एंड क्लियर डेलीमीटर। सो यू हैव टू यूज़ these techniques, and if you use these techniques definitely you will get your desired output in the less time, in the less cost। so this is the whole series and the whole discussion of the prompt techniques। this is the third video, and in the second video we covered prompt based formatting, like start with clear instruction, use delimiter for separation, be specific and detailed, प्रोवाइड एग्जाम्पल फ्यू शॉर्ट टेक्निक एंड डिफाइन द डिज़ायर आउटपुट फॉर्मेट, जो कि मैंने पहले बताया कि कैसे आप इनपुट दोगे, प्रोवाइड डेलीमीटर कैसे लगाओगे, क्लियर इंस्ट्रक्शन, ये होता है। एंड फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था ही लाइक इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इनपुट
डेटा क्या है, आउटपुट इंडिकेटर कैसा होना चाहिए, तो ये आप दे सकते हो, जो पहले 2 वीडियो में मिल जाएगा आपको। हिंदी 4th वीडियो भी कवर लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाई प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द गुड प्रॉम्प्ट, अपन कवर करेंगे 4th वीडियो में। ओके, देन मल्टी क्वेश्चन लाइक ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप के, देन वी विल कवर आल्सो दिस आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बिकॉज लाइक अपनी सीरीज चल रही थी, इसमें अपन कवर करते जा रहे हैं और देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू फॉर टुडेज। ओके।